A very sweet good morning, my dear students of class 11th. Uh, since your exams are very close to you, so I am going to explain your third chapter from the book Hornbill. The chapter's name is Discovering Tut, the Sega Continuous. Discovering Tut is a chapter which gives us an in-depth insight of Tutankhamun. This is the name of Tut's forefathers or rulers, the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. Tut was the last ruler of the Egypt, but he was died in young age. When he was teenager, he died. But his death was a mystery. Nobody could understand how he was dead. Some speculated that he was murdered. Some people speculated that he was murdered. He ruled in Egypt and its empire for centuries. शताब्दियों तक उसने जो है राज किया वहाँ पर. In 1922, his tomb was discovered by Howard Carter. This is a very important line I am going to describe. Just listen carefully. He ruled in Egypt and its empire for centuries. In 1922, his tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist. एक पुरातत्व विज्ञानी था कार्टर, हावर्ड कार्टर. उन्होंने 1922 में उसकी मम्मी को डिस्कवर किया था. डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ मम्मी? You would have seen movie also in your television. Mummy means a person that had died many years ago, but his dead body is preserved up to a long time. It's called mummy. After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan. When his body was discovered, to know how he was murdered, how he was dead, so his body was placed in CT scan. Do you know what is CT scan? Yeah, nowadays this technique is very popular to scan your entire body to know what are the problems in your body. So his body was discovered, scanned, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. Forensic reconstruction, due to this way, they wanted to know how Tut was died. Tut's father or grandfather, Amenhotep III, उनके फादर या ग्रैंडफादर एमेनोटॉफ III ये रहे होंगे, was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. They were really very powerful. They ruled Egypt for 40 years. They left their name and gave a special identification to Egypt that time. His son Amenhotep IV thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. He promoted the worship of Aten, the sun disk. उन्होंने सूरज की पूजा करने को प्रमोट किया. Actually, it was happened in the ancient time. If ruler was changed, then all the ways of worshipping, all the ways of prayers, worshipping were changed. They developed the worship places, the religious places according to their own interest.
इन गॉड, अपने भगवान के हिसाब से वो क्या करते थे, पहले वाला जो शासक होता था उसके सभी भगवान को, मंदिर वगैरह को, इनको हटा के अपने बनाते थे, उनको वो हटा देते थे, रुइन कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। ही चेंज हिज नेम टू अखेनटेन मीनिंग सर्वेंट ऑफ द एथेंस, अपना नाम भी बदल के उन्होंने अखेनेटेन लिख दिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एथेंस। ठीक है, सूरज का सर्वेंट। ही ऑल्सो दास, ही ऑल्सो मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनटेन, अपनी कैपिटल भी उन्होंने वहाँ से नई सिटी अखेनेटेन में ले आए, जिसको कॉल्ड अमारना। इट वॉज कॉल्ड अमारना। दिस इज द एक्चुअली टिपिकल चैप्टर, दिस इज द स्टोरी related to your past, related to the past of the rulers of Egypt. So it's very hard, but you will be able to understand it if you will give your 100%. Okay. Further, he attacked Ammon, a god, smashed his image and closed his temple. As I told you that the temples were ruined and destroyed by them. तो उन्होंने अपने टाइम पे उनको बर्बाद कर दिया, टेम्पल को, जो एमन था, एक गॉड थे, उनके टेम्पल को। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। नेक्स्ट, तूतनखामन, ऑल्सो नोन एज टुट, दिस वॉज द नेम ऑफ टुट, एक्चुअली इट इज स्ट्रेंज टू टेक द नेम, इट्स स्ट्रेंज, sat on the throne and ruled for 9 years. For a very short period he ruled, but that period was very magnificent period, important period, I would say. He worshipped god Ammon in the old ways, पुराने तरह से इसको पूजा करते थे एमन की। However, he died mysteriously, उसकी जो मौत हुई, the death of Tut was a mystery. Nobody could know how he was died. It was mystery. Everybody was curious to know about his death. When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold. Do you know, students, what had happened the past time? When any prince or the member of the royal family was dead, his body was covered with different types of ornaments, and all the things were put with their dead bodies as they would use them in next birth. ऐसा माना जाता था कि उनकी सभी चहेती चीज़ें, कपड़ा, जेवर, शराब, खाना, ये सब रख दिया जाता था, और they believed that in next in upcoming birth they would use them, कि वो उनको अगली उसमें यूज़ करेंगे, अगले जन्म में, तो वो सब चीज़ें उनके साथ रख दी जाती थी। इसके साथ लॉट्स ऑफ गोल्ड, वेल्थ एंड एवरीडे आइटम्स लाइक ब्रॉन्ज, रेजर, गेम्स, क्लॉथ, उसका रेजर, उसके कपड़े, केसेज ऑफ फूड, खाने की कई चीज़ें, वाइन और शराब, ये सब रख दिया गया था। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक कार्टर ने सर्च किया, उसके बाद उसने बॉडी डिस्कवर की पाई। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स मीन्स खजाना, उसको रिसर्च के बाद ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 nested coffins, 3 nested coffins. हिज कॉफिन बाद 3 लेयर, 3 nested, ये भी कह सकते 3 लेयर थी, या 3 कॉफिन उसके आसपास रखे गए थे और चीज़ों के साथ। Some parts of the Tut's treasures in the tomb were already looted. कुछ पार्ट वहाँ के उन्होंने क्या था, उसको चांदी वगैरह, सिल्वर और गोल्ड से ये मड़ा हुआ था ना, तो उसको चोरों ने चुरा भी लिया था वहाँ से, उसकी कब्र से ये चीज़ें निकाल भी ली थी। हिज टॉम वाज रॉक कट, उसकी टॉम काट के निकाली गई। 26 फीट अंडरग्राउंड, 226 फीट ज़मीन में रखी गई थी। विच हैड वॉल पेंटिंग्स इन द केव, जो उनका जो ग्रेव था उसमें वॉल पेंटिंग की गई थी।
Tut's face was gilded on the outer coffin. आउटर कॉफिन पे उसका चेहरा रखा गया था, उस पर गिल्ड करके. इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर. फर्स्ट कॉफिन में उसको मालाएं फूलों की, लोटस की पत्तियां, कॉर्नफ्लावर्स, ये सब रखे गए थे. इट शोड दैट ही वाज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. तो ये चीज़ें रखी गई थी, तो दे शो दैट ही वाज बरीड इन द मार्च अप्रैल महीने में उसको दफन किया गया था. उन चीज़ों को पता लगता है. द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल. थर्ड जो कॉफिन था उससे वो परेशान हो गया, उसे काट भी नहीं पाया वो. एक्चुअली द रेजिन यूज टू सीमेंट टूट द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन was hardened enough, making it impossible to move. Oh my God, what had happened? रेजिन्स जो रार जिसको बोलते हैं, बहुत चिपकने वाली ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको सीमेंट उसकी बॉडी को चिपकाने के लिए उन्होंने कहा कोई चोर अगर इसको खोद लेगा तो उसकी बॉडी के अगर कोई ऑर्नामेंट नहीं निकाल पाएगा तो हो सकता है हाथ की अगर अंगूठी ना निकाल पाए तो उसका हाथ ही काट दे, या ये ना ले पाए मुकुट तो उसका सर काट दे. तो पूरी तरह से कंप्लीटली फर्मली हिज बॉडी वाज पेस्टेड विद द रेजिन इन द कॉफिन. ही पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स इन होप ऑफ रेजिन्स टू लूजन अप, बट इट डिडंट वर्क. कई घंटों तक उसने उस रार को, जो सीमेंट जो जुड़ा हुआ था, उस पदार्थ को बॉडी से ही धूप में रखा ताकि ये पिघल जाए तो उसकी बॉडी को वो रिमूव कर पाए, बट इट डिड नॉट वर्क. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. फाइनली रिमूव द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चीसिल एंड हैमर. छेनी और हथौड़े से उसने फिर उसको काट काट के निकाला. कार्टर फेल्ट ही डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस एज टू इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. वो कहता अगर मैंने एक एक अंग काट के ना निकाला होता उस बॉडी से तो उसको निकालना बहुत ही, इट वॉज वेरी हार्ड टू रिमूव द बॉडी ऑफ टूट फ्रॉम द कॉफिन बिकॉज इट वॉज पेस्टेड फर्मली विद द रेजिन. सो यू यूज्ड मैनी weapons, cut weapons to remove his body. They placed it on the layer of the sand. After removing the body, different parts of his body was put on the sand. In the boarding box, लकड़ी के बक्से में रेत में रख दिया गया. And put it on the original place पे इसको रख दिया गया. In 1968, the mummy was x-rayed by an anatomy professor. Do you know what the meaning of anatomy? It is a field of, anatomy होता है जंतु विज्ञान, जिसमें एनाटॉमी में कीड़े मकोड़े इनका भी, जंतुओं का इनका अध्ययन किया जाता है. ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जहाँ तक मैं समझता हूँ. तो एनाटॉमी प्रोफेसर जो वो थे, उन्होंने इसको जो है एक्सरे किया इसकी बॉडी का. रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स भी रिवील किए, ओपन किए. हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब वर मिसिंग. उसने देखा उसकी जो छाती की बोन थी, हड्डी, और फ्रंट रिब्स, जो रिब माने पसलियाँ ये थी, वो मिसिंग थी, बॉडी में पाई नहीं गई. लेटर ऑन जनवरी 5, 2009, जनवरी 5, 2009 को टूट वाज टेकन टू CT, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. जो CT स्कैन होता है उसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं. स्कैन विच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, कई एक्सरे लिए गए उसमें, एंड क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज वहाँ पर बनाई गई. द नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन कैरीड हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम्ब इन ए बॉक्स. टॉम्ब से बॉक्स में बॉडी करके लाए थे जब उसका एक्सरे किया गया, बॉडी का CT स्कैन किया है. द क्लाइम्ड रैम्प एंड स्टेयर्स एंड लिफ्टेड इट ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. बहुत ऊंचे से उठा के उनको ऊपर चढ़ के तब बॉडी को रखा गया. द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पॉज्ड द प्रोसीजर. बीच में स्कैनर रुक भी गया, प्रक्रिया रुक भी गई. आफ्टर यूजिंग ए पेयर ऑफ स्पेयर फैंस द स्कैन वाज फाइनली डन. 2 स्पेयर फैन लगाए गए अलग से एडिशनल, तब उसकी बॉडी को स्कैन किया जा सका. आफ्टर 3 hours हिज बॉडी वाज टेकन बैक टू हिज टॉम्ब. After CT scan, after taking many X-rays, his body was safely taken to his
टॉम्ब वेयर इज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस, जहाँ उसकी आत्मा, उसका शरीर जो है शांति में रह रहा था। होता कोई एक्सपायर हो जाता तो हम लिखते हैं रेस्ट इन पीस, RIP देखा आपने। तो उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसकी बॉडी को उसी जगह पर रख दिया गया। ओके, तो यू नो आई होप दैट you have understood the entire chapter, discovering Tut's body. Actually, the last ruler of the Egypt is described in this chapter, and the contents I have described. You please read the chapter line by line, word by word, so that you could understand it well. Okay. You are supposed to complete the question answers of this chapter. I will send them on your group. After completing the work, you are supposed to take a pic and send it to me back on my personal WhatsApp number so that I could check it. आप मेरे WhatsApp नंबर पर भेज दीजिए, मैं उसको चेक कर दूंगा जो वर्क आपने किया होगा कि सही है या नहीं है। तो जो भी वर्क आप करते हैं मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं उसको चेक करूँगा। ठीक है, तो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू माय डियर।